Okay, I think yesterday we discussed the topic scalar electric potential and potential gradient. Okay, so electric potential. So when you say potential, it is always with respect to it is of absolute potential at a particular point. Okay, so at that time, so for example, equation 4.63. So here 4.63, it says V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. That means V is the absolute potential at a point B. And when we say absolute potential, that means it is assumed that the another point is a reference point, which is you can say ground potential. Okay, so at that point, potential is zero. So assuming those things, we can write absolute potential value by this equation 4.63. So we have completed this in previous lecture, and I think you have written this also. A potential at any point is the potential difference between that point and a chosen point at which the potential is zero. So that is the same case, that is VAB. So V, you have, how will you write VAB? That is VB minus VA, where VA, we are assuming that VA is zero because point A is the reference point, which is assumed to be which is assumed to be at ground potential. So same thing is given over here. That is the potential at any point is the potential difference. So that is VAB. So VB, it is VB minus VA. So VA is zero. So VAB is nothing but VB. Okay. Write down next topic, Poisson's and Laplace's equations. Write down next topic, Poisson's and Laplace's equations. Okay, now before starting this topic, anybody is having any idea of about Laplacian operator? Again, this was there in vector mathematics. Okay, so what is Laplacian of a scalar? Anybody is having any idea? ओके अगर नहीं पता है प्लीज राइट डाउन दिस टॉपिक, क्योंकि ये तुम लोग को पहले पता होना जरूरी है. व्हाट इज लैप्लासियन? ओके, नाउ यू नो डाइवर्जेंस क्या होता है. ओके, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय डेल डॉट वेक्टर का जो भी नाम है. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज डी देन डेल डॉट डी, so that is the divergence. How will you write curl operation? How the curl is denoted by del dot d is the divergence operation. Curl कैसे लिखेंगे? Cross. Okay, so del cross, suppose there is a vector. Okay, so del cross a will be the curl of a. Del cross a matlab curl of a. So curl, so when you say curl, can you tell me what will be the direction of a vector? So if you are calculating del cross a, how the vector is moving? When you say del cross a, how the vector is moving, or you can say how it is displaced. कर्ल का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कर्ल? CURL, कर्ल. कैन आई से इट इज इन अ रोटेशन, रोटेशनल? Yes, ma'am. ओके, तुम लोग को अभी एक मिनट, आई विल शो यू. एक्चुअली दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर. ओके, ओके, कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस स्क्रू? Yes. Yes, ma'am. सो ये स्क्रू पे जो थ्रेड्स है, तो दे आर इन विच डायरेक्शन? अगर मैंने बोला कि दे आर इन विच डायरेक्शन, so you can say axis which is passing through this screw is along the z axis, you can say like that. But ये जो threads है, can I say those threads are in x direction or those threads are in y direction? तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? those threads, उसका डायरेक्शन वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Can I say it is showing curl? मैम, हेलो, हाँ बोलो. मैम वो जेड तो ये, डायरेक्शन बोले आपने. हाँ,
सी ये स्क्रू है, ठीक है. एक्चुअली सी दिस लॉ विल कम आफ्टरवर्ड्स, बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लैप्लासियन. बट ये तुम लोगों ने पहले भी स्टडी किया, बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ. ओके, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल. Now we are using this right hand thumb rule in case of a magnetic field. Okay, if you want to find out the magnetic field direction, कब डायरेक्शन फाइंड आउट करना है? सपोज इफ there is a electric component placed in the z plane, sorry, placed in xy plane. Okay, there is a electric component or you can say current को मैंने प्लेस किया है कहाँ पे? xy plane में. So xy plane में suppose it is placed in the form of loop मतलब एक loop है, कंडक्टिंग मेटल वायर है. कंडक्टिंग मेटल वायर को लूप के फॉर्म में हम लोगों ने रखा है कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन में. एंड दैट लूप इफ इट इज कैरिंग अ करंट, ओके, इंक्रीमेंटल करंट, आईडीएल इज द इंक्रीमेंटल करंट. तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू दैट लूप, it will create a magnetic field. Okay, so it will create a magnetic field, and the magnetic field intensity which is denoted by H, ये तुम लोगों को पता है. H is what? Magnetic field intensity. So that magnetic field intensity which will be directed along the z axis. ठीक है. And this, ये जो अभी मैंने बोला, ये कैसे देते हैं हम लोग? ये how to give the direction of magnetic field intensity, that is given by the right hand thumb rule. Okay, you can see in the figure A, एक तुम लोग को right hand दिख रहा है. Okay, you can see this right hand, there is a thumb. तो यहाँ पे can you see these curled fingers? ये जो 4 fingers है, these are in the curl direction, right? So these fingers are showing the direction of what? कर्ल फिंगर्स किसका डायरेक्शन शो कर रहे हैं? अभी यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा अलग दिया. अलग मीन्स सी इट कैन बी वाइस वर्सा. इफ कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, okay, if curled fingers are showing the direction of magnetic field, then ये जो thumb है that will show the direction of current. See, मैंने क्या बोला? ये 2 वे में तुम लोग सेम रूल बोल सकते हो. 2 वे मतलब क्या? एक है कि यू आर अज्यूमिंग कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स. ठीक है, कर्ल्ड फिंगर्स जो है उसमें तुम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है, विच यू कैन सी ओवर हियर, डीएच. तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे जा रहा है? कैन आई से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज. ये जो पेज है, सी, ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेज, राइट? Or you can say it is a rotating vector along the z axis. Can I say like that? DH को देखो, ये DH. अभी D से DH का मतलब सिर्फ इतना ही है. When you say D, H is the magnetic field intensity. अगर D लगा रहे हो आगे तो मतलब क्या है? Incremental और differential magnetic field intensity. So differential मतलब हम लोग सिर्फ छोटा सा magnetic field element consider कर रहे हैं. Okay, and from that we then can calculate the complete magnetic field intensity. तो यहाँ पे क्या है? 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द कर्ल डायरेक्शन, ओके, मतलब इफ द कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. या वाइस वर्सा भी पॉसिबल है. वाइस वर्सा मीन्स इफ द कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग द करंट डायरेक्शन, ओके, इफ द कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग द करंट डायरेक्शन. अभी ये कब होगा? ये कौन से केस में होगा कि कर्ल्ड फिंगर्स विल शो द करंट डायरेक्शन? दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर सेइंग दैट XY प्लेन में तुम लोग ने एक लूप को प्लेस किया है, सर्कुलर लूप. ओके, एक सर्कुलर लूप को तुम लोगों ने XY प्लेन में प्लेस किया है, एंड दैट लूप इज कैरिंग अ करंट. ओके, दैट लूप इज कैरिंग अ करंट. सो उस टाइम पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? Can I say that at that time the direction of current will be like a curled fingers? Yes or no? Hello? Yes, ma'am. हाँ, तो उस टाइम पे अगर तुम लोग कंसिडर कर रहे हो कि तुम लोगों ने लूप प्लेस किया है XY प्लेन में, सी थोड़ा सा विजुअलाइज करो. ओके, लूप, एक लूप है मेटल वायर का लूप, सर्कुलर लूप, उसको उसमें से करंट जा रहा है, ऐसे अज्यूम करो. ओके, एंड वो लूप तुम लोगों ने कहाँ पे प्लेस किया? XY प्लेन में प्लेस किया. सो इफ यू आर प्लेसिंग अ करंट कैरिंग लूप इन द XY प्लेन, सो कैन आई से
और फिर उसी टाइम पे तुम लोग जो राइट हैंड है अपना, वो राइट हैंड भी यूज करो एंड होल्ड योर राइट हैंड इन दिस वे एज शोन इन दिस फिगर ए. ओके, तो उस टाइम पे कैन आई से माय कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग द करंट डायरेक्शन? यस, Yes. curled fingers are showing the current direction. So if the curled fingers are showing the current direction, and if I ask you, then what is the magnetic field intensity direction? Then what it will be? What it will be? Where will be the magnetic field intensity directed? In which direction? Right hand thumb rule सिर्फ अप्लाई करना है. I think this you have studied in physics, right? फिजिक्स में भी था ये तुम लोग, क्योंकि ये बेसिक लॉज है मैग्नेटिज्म के लॉज. हाँ बोलो. कर्ल्ड फिंगर्स, इफ कर्ल्ड फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बता रहा है यहाँ पे? थंब. ओके, तो अभी मैंने तुम लोग को क्या पूछा? सपोज इफ देयर इज अ लूप कैरिंग अ करंट व्हिच इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, ओके, एंड दीज फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. मैं क्या बोल रही हूँ? सी ये डायरेक्ट सिर्फ मैं क्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो. ओके, ये डायग्राम थोड़ा अलग है. तो इफ द fingers are showing the direction of current, then what will be the direction of magnetic field intensity? Which direction? मैम इंटेंसिटी तो कर्ल फिंगर्स हो गए ना? नहीं सी, हाँ दोनों. सी मैंने क्या बोला? दोनों पॉसिबल है. दोनों पॉसिबल मतलब क्या? अगर कर्ल्ड फिंगर्स करंट डायरेक्शन दे रहे हैं तो थंब क्या देगा? इंटेंसिटी. ओके, थंब विल शो द इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन. उल्टा भी पॉसिबल है. उल्टा मतलब क्या? इफ थंब इज शोइंग करंट डायरेक्शन, if thumb is showing current direction, then curled fingers will give the intensity direction. समझा? They are always mutually orthogonal. Orthogonal, right. हाँ, yes, orthogonal. So that's why so अभी यहाँ पे देखो curled fingers. So तुम लोग देख सकते हो. So curled fingers मतलब you can say xy plane, right? जो भी वेक्टर आएगा, curled fingers मतलब the vector which you are trying to show, that will be in xy plane. Okay, and this xy plane, and जो thumb है, thumb is in z plane, z direction. Thumb is pointing the z direction. So xy plane and z, what is the angle? Can I say these are orthogonal? 90 degree angle है. Yes, ma'am. Okay. So ये जो रूल है वो दोनों के लिए कैसे है? अगर कर्ल्ड फिंगर्स करंट दिखा रहे, if you are saying the current is in the direction of curled fingers, then the magnetic field intensity will be in the direction of thumb. ये एक पहला पॉइंट है. Please note it down, all of you. If the curled fingers are showing the direction of current, then thumb will show the direction of magnetic field intensity. What is the second thing? What is the second thing? ये पहला हो गया. Curled fingers showing the direction of current. What is the example of this case? पहले हम लोग एक ही केस को डिस्कस करते हैं. Okay, what is the example of this case? Curled fingers are showing the direction of current. ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? अभी मैंने बताया. कौन सा ऐसा करंट कंपोनेंट है इन विच द डायरेक्शन विल बी इन अ सर्कुलर डायरेक्शन? करंट का जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर रहेगा. Coil. हाँ, कॉइल बोल सकते हो या लूप. अगर एक ही वन टर्न का मैंने लूप कंसिडर किया तो भी चलेगा. ओके, सो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट केस. राइट डाउन केस 1. राइट डाउन केस 1. ऊपर लिखो राइट हैंड थंब रूल. हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल. और राइट डाउन बायोट-सावर्ट लॉ. ये वाला, ये एक्चुअली मुझे बाद में लेना था, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग को कर्ल ऑपरेशन इट इज नॉट क्लियर. बहुत लोगों को कर्ल ऑपरेशन पता ही नहीं है. सो आई हैव टू डिस्कस दिस फर्स्ट, देन वी कैन गो फॉर द लैप्लासियन. क्योंकि तुम लोग को डाइवर्जेंस क्या होता है वो पता है, बट कर्ल क्या होता है वो पता नहीं है. तो बाद में जाके ये आने वाला है. इसलिए सो जस्ट अभी गिव द टाइटल बायोट-सावर्ट लॉ और उसके नीचे ये लिखो. उसके नीचे लिखो राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल लिखो एंड उसके नीचे अभी क्या लिखोगे? फर्स्ट केस. व्हाट इज द केस 1? राइट डाउन. इफ the curled fingers
if the curled fingers are in the direction of current, if the curled fingers are in the direction of current, in bracket write down I. If the curled fingers are in the direction of current, that is in bracket I, then the thumb will indicate the direction of magnetic field intensity H. Then thumb will give the direction of magnetic field intensity H. ये हो गया statement 1, or you can say case 1. Give the example of case 1. What is the case 1 example? Write down case 1 example. A circular loop, a circular current carrying loop. Write down current carrying loop. A circular current carrying loop placed in XY plane. A circular current carrying loop placed in XY plane. This is the example of case 1. So case 1, is it clear? All of you? Yes, ma'am. ओके कोई है जिसको केस, क्योंकि केस 1 पहले समझना चाहिए, केस 2 एग्जैक्टली उसका अपोजिट है, बाकी कुछ नहीं है. तो केस 1 सबको क्लियर है? किसी को अभी भी डाउट है प्लीज आस्क. क्योंकि कर्ल क्या होता है, कर्ल ऑपरेशन इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस. कर्ल को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, बट कर्ल होता क्या है? कर्ल अगर बोल रहे हो कर्ल वेक्टर, मतलब कैसे होगा, वो दिखेगा कैसा, वेक्टर डायरेक्शन क्या रहेगा, ये तुम लोग को पता होना चाहिए. सो व्हेन यू से कर्ल देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. सो अभी ये जो है फिगर ए, इसमें जो दिया है, सो कैन यू टेल मी इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. इट इज एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो राइट डाउन देयर. ये डायग्राम में जो दिखा है दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज. ये जो है कर्ल दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो केस 1 एग्जांपल क्लियर है. नाउ राइट डाउन केस 2. केस 2 में क्या लिखोगे अभी? व्हाट कैन बी द केस 2 स्टेटमेंट? Ma'am, if the thumb represents हाँ, the direction of current, then current, the curl finger curl fingers, will show the intensity, uh, represent the intensity. intensity, magnetic field intensity. Write down. Yes, right. बराबर है. Exactly मैंने बोला ना, अभी रिवर्स लिखना है. Write down. If the thumb is showing, or you can say if the curled fingers are showing magnetic field intensity, then thumb will show direction of current. या तुम लोग, if the thumb is showing direction of current, curled fingers will give the magnetic field intensity direction. If thumb is showing current, then curled fingers will give magnetic field intensity direction. In bracket H, magnetic field intensity, that is H, uska direction. So that is your case 2. एंड में सिर्फ इतना लिखो कि I and DH, I मतलब करंट एलिमेंट, I and DH, or you can say H, they are orthogonal to each other, or you can say they are lying in a plane which are orthogonal. Orthogonal to each other, I and DH orthogonal to each other. ठीक है. Okay, so this is the right hand thumb rule. Same rule is given by screw, right handed screw rule. तो वही है, सेम चीज. ओके, तो ये बी जो डायग्राम है, डायग्राम बी में क्या दिखा है? दिस इज अ स्क्रू. तो स्क्रू में ये जो थ्रेड्स है, ओके, सो यू कैन से दीज आर हाउ दे आर रोटेटिंग. दे आर इन द अगेन दे आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो यहाँ पे भी ये जो थ्रेड्स है, यू कैन से दीज थ्रेड्स आर लाइक अ कर्ल्ड फिंगर्स. तो इफ दिस threads are showing the direction of magnetic field intensity H. See यहाँ पे दिखाया है. This is the magnetic field intensity H, DH. ये circular दिखाया है ना यहाँ पे, that is DH. So that is the magnetic field intensity. So this is a curl vector. So if this is showing DH, then what is the current direction? The current direction will be given by the Z axis, or you can say axis of the screw. Okay, ये screw का जो axis है, that axis will denote
the direction of current, that is I. ओके तो राइट हैंड थंब रूल एंड ये स्क्रू दोनों भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है. तो अगर तुम लोग को राइट हैंड थंब रूल इजी लग रहा है तो प्लीज ऑलवेज यूज दैट एंड अकॉर्डिंगली you can give the direction of current and magnetic field intensity. So is this rule clear? Is it clear what is the curl? Curl क्या होता है ये समझा? Yes, ma'am. ओके अभी ये कर्ल को, ये जो कर्ल है इसको रिप्रेजेंट देखो यहाँ पे कैसे किया. जस्ट सी ओनली दिस थिंग, आईडीएल क्रॉस एआर. ओके जब तुम लोग ये बोलते हो आईडीएल क्रॉस एआर, इसका मतलब क्या है? आईडीएल मतलब अभी यहाँ पे डीएल लिया है क्योंकि इट इज ए इंक्रीमेंटल. सपोज अगर डीएल नहीं लेना है तो इट विल बी ओनली आई. तो आईडीएल लो या आई लो कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो इफ सपोज इफ वी आर टेकिंग द इंक्रीमेंटल करंट दैट इज आईडीएल, तो आईडीएल जो भी डायरेक्शन में रहेगा, सो दैट आईडीएल का एक वेक्टर है cross with AR. So what is this AR now? This AR is actually the magnetic field intensity का component है. Okay, so AR is giving you a magnetic field intensity component. So IDL and cross AR, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है. तो जो भी ये दो वेक्टर्स है दैट इज I and DH, इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अ क्रॉस प्रोडक्ट. ओके क्रॉस प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि एक का डायरेक्शन कर्ल है एंड वन वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस. So curl is denoted by cross product. Okay, तो ये हम लोग डिटेल में लॉ बाद में पढ़ेंगे. तुम लोग को कर्ल ऑपरेशन क्या होता है वो मैंने अभी बताया. अभी एग्जैक्टली सपोज अगर मैंने बोला कि इफ द करंट नाउ हियर इफ यू सी दिस फिगर, करंट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? नाउ इफ आई एम सेइंग करंट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएच? If current is in downward direction, Clockwise. तो DH का डायरेक्शन क्या आएगा? अभी DH कौन से Clockwise. डायरेक्शन में? हाँ अभी DH एंटी क्लॉकवाइज था. ओके प्रीवियस केस में. अभी मैं क्या बोल रही हूँ? करंट अभी डाउन जाएगा. सो इफ करंट इज गोइंग डाउन, सो तुम लोग को जो तुम लोग का हैंड है राइट हैंड, उसको कैसे करना पड़ेगा? थम्स डाउन करते ना वैसा करो. ओके थम्स डाउन. ये पहला केस जो है दैट इज थम्स अप. तो थम्स अप के केस में करंट ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि कर्ल्ड फिंगर्स आर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड थंब व्हिच इज पॉइंटेड अप इज शोइंग द करंट डायरेक्शन. अभी मैंने बोला थम्स डाउन करो. ओके तो थंब डाउन किया तो क्या होगा? नाउ थंब इज शोइंग करंट डायरेक्शन, सो करंट इज गोइंग इन व्हिच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ इफ करंट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? Clockwise. It will be clockwise. Okay, please mention this point also. जल्दी से note down करो ये. Write in your words. Completed. Completed. Yes, ma'am. Okay. अभी हम लोग आते हैं लैपटॉप. हाँ ठीक है. अभी तुम लोग को कर्ल ऑपरेशन क्या होता है वो पता है. कर्ल वेक्टर हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन विजुअलाइज नाउ. नाउ नेक्स्ट थिंग इज लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर. बिफोर दिस एक मिनट. हाँ आई थिंक ये तुम लोगों ने पहले स्टडी किया रहेगा. या फॉर जस्ट रीड दिस सेंटेंस. फॉर अ वेक्टर फील्ड show explicitly that del dot del cross A is equal to 0. इसका मीनिंग what is the meaning of this del dot del cross A is 0? The meaning is del dot इसका मतलब divergence of something. Okay, so divergence of what? It is del cross A. मतलब del cross मतलब क्या? Curl of A. So curl of A and del dot है मतलब divergence of this thing. So that means divergence of curl of any vector field is 0. So now this is the you can say it is the identity. So just you have to check is it true. ये तो दिया ही है पहले, but can you say this is a true or false?
Divergence of the curl of any vector field is 0. Can you prove this thing? Okay, see. Ma'am, do you mean logically? हाँ, लॉजिकली कुछ यहाँ पे अपने को कुछ प्रूव नहीं करना है. वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव, मतलब यूजिंग ये क्या बोलते हैं, इक्वेशंस. जस्ट लॉजिक सोचो इसके पीछे. Ma'am, basically, if we find out a curl, then we'll only get upwards or downward direction. And if we take the divergence, and its divergence will be 0 since it's only moving a straight line. Yes. Along a straight line. Right. Okay. Whatever Dhruvil has said, that is perfectly fine. Okay. So see, divergence of the curl of any vector is 0. Okay. ये तुम लोग logically भी सोच सकते हो. कैसे? कर्ल एक वेक्टर है which is moving. Okay. रोटेशनल वेक्टर है. एक तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे, you can say. But it is a rotating vector. Okay. And अगर तुम लोगों ने उसका एक्सिस फाइंड आउट किया, so axis will be, for example, a cylinder. Consider the cylinder. Okay. So cylinder का जो एक्सिस रहता है, so that is the which is at the center. Okay. So वो जो वेक्टर है, that is the curl vector. So जो रोटेशनल है, एक तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा. Okay. But it will not deviate from its path. It will not deviate from its path. मतलब ऐसे नहीं है कि वो एक्सिस छोड़ के कहीं दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है. Okay. That will not happen. इसका मतलब ये है कि जो कर्ल वेक्टर रहता है, ओके, तो कर्ल का अगर तुम लोग डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने जाओगे तो दैट विल बी ऑलवेज 0. दैट मींस द वेक्टर व्हिच इज ऑलरेडी कर्ल्ड, if you are trying to find out its divergence, that will be always 0. Are you getting this thing? Is it clear? ये identity. हेलो, ये आइडेंटिटी सबको क्लियर है लॉजिकली? बाकी लोग कुछ मैम एक बार और एक्सप्लेन करो ना. हाँ, तुम लोग को मैंने ओके जिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस एंड डाइवर्जेंस 0, इसके ग्राफ बताए थे, 3 डायग्राम. कैन यू रिकलेक्ट दोज डायग्राम्स? पॉजिटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस एंड डाइवर्जेंस 0, याद है कुछ? यस मैम. हाँ, तो सेम चीज अभी यहाँ पे वही अप्लाई करना है अपने को. ओके. सो डाइवर्जेंस 0 है, मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंस इज 0? डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज 0. इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर, एक सपोज एक वेक्टर का कुछ पाथ था, ओके, तो वो कितना वो पाथ को फॉलो कर रहा है. ओके, इफ इट इज नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम इट्स पाथ, ओके, एक वेक्टर है, उसका कुछ पाथ है, अगर वो पाथ से डाइवर्ट नहीं हो रहा है, दैट मींस डाइवर्जेंस इज 0. इज इट ओके दिस पॉइंट? कैन आई से लाइक दैट? यस मैम. हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे. व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट क्या है? डेल डॉट मतलब किसी का तो डाइवर्जेंस. ओके, अभी किसका डाइवर्जेंस वो अपने को देखना है. डाइवर्जेंस ऑफ डेल क्रॉस ए. डेल क्रॉस ए क्या है? डेल क्रॉस ए मतलब यहाँ पे वेक्टर कौन है? ए इज द वेक्टर. ए इज द वेक्टर क्वांटिटी जिसको कुछ तो डायरेक्शन है. नाउ व्हेन आई एम सेइंग डेल क्रॉस ए, इसका मतलब ये है कि वो जो ए वेक्टर है उसका कर्ल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे. कर्ल, CURL, कर्ल. तो कर्ल जो रहता है वो तुम लोग को पता है, कर्ल डायरेक्शन हमेशा कैसा रहता है? रोटेशनल. ओके, एक तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. ओके, नाउ व्हेन इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इज इट डाइवर्टिंग फ्रॉम इट्स ओन पाथ? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम लोग, हाँ यस, तो मतलब वो सिर्फ घूमते रहेगा. ओके, वो अगर सपोज अगर क्लॉकवाइज ऊपर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ऊपर जाएगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड नीचे जाएगा, बट इट विल नॉट डेविएट, मतलब बाकी कोई भी डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा. तो दैट मीन्स कर्ल का जो डाइवर्जेंस रहता है वो ऑलवेज 0 है. इज इट क्लियर? इट विल नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ. कर्ल वेक्टर जो है वो उसके पाथ से डेविएट नहीं होगा. सो दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0. इज इट ओके? यस मैम. ओके, तो ये प्लीज इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाओ कि क्यों है ऐसा. व्हाई दिस इज द स्टेटमेंट? व्हाई द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज 0? उसको थोड़ा सोचो. डाइवर्जेंस कैसे देते हैं हम लोग? डाइवर्जेंस मतलब क्या? कोई डेविएट हो रहा है क्या? ओके, सो दैट इज द डाइवर्जेंस. कर्ल क्या होता है? कर्ल मतलब एक वेक्टर है जो रोटेट हो रहा है. ओके, रोटेट हो रहा है. अगर कोई वेक्टर सिर्फ रोटेट हो रहा है मींस इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस फिगर में देखा, इट वाज रोटेटिंग अराउंड द z एक्सिस.
तो अगर वो रोटेट हो रहा है जेड एक्सिस के साथ, मतलब वो अपने एक पाथ, जो उसका एक पाथ है रोटेट होने का, सर्कुलर पाथ, वो अपने पाथ में ही घूम रहा है. Okay, and if it is following its own path, and if it is not deviating from its own path, that means divergence is zero, right? Hello. Yes, ma'am. Okay, अभी कोई है जिसको ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है डाइवर्जेंस क्या है, कर्ल क्या है? कोई है ऐसा प्लीज? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये जो टॉपिक है द वेक्टर कैलकुलस या जो भी है, ये तुम लोग मैथ्स में बहुत लोग हैं. कितने लोगों ने ऑप्शन में डाला था? मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन में डाला. ओके, कितने लोगों ने किया था? किसने ये वेक्टर कैलकुलस किसने प्रॉपरली किया था? जस्ट पुट इट इन चैट बॉक्स. शिवम गुप्ता ने किया है. ओके, तो आंसर आना चाहिए तुम लोग से. ओके, इफ यू आर सेइंग हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस प्रॉपरली किया था, पढ़ा था मैथमेटिक्स में, तो आना चाहिए फिर. ठीक है, या तो फिर उस टाइम पे तुम लोगों ने रट्टा मारा था, तुम लोगों ने कर्ल क्या एग्जैक्टली होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, उसको समझा नहीं था. सो दैट शुड नॉट हैपन. ओके, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है. ठीक है, चलो, तो तुम लोगों को अभी कर्ल एंड डाइवर्जेंस क्या है वो क्लियर है. नेक्स्ट टाइम फिर कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर नहीं तो टाइम ही जाएगा. नेक्स्ट इज नाउ लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर. ओके, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का लैप्लासियन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे. सो व्हाट इज द लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर? इसका मतलब क्या है? राइट डाउन, टॉपिक लिखा है कि लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर, उसमें लिखो, राइट डाउन दिस टॉपिक फर्स्ट. लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर, लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर, एंड राइट डाउन, उसके नीचे लिखो द ऑपरेटर लैप्लासियन. राइट डाउन द ऑपरेटर, जैसे डाइवर्जेंस डेल, डेल जो है वो एक ऑपरेटर होता है, वैसे अभी लैप्लासियन एक अलग ऑपरेटर है. राइट डाउन द ऑपरेटर लैप्लासियन is a single operator. The operator Laplacian is a single operator which is composite of मैम सिंगल व्हाट? सिंगल ऑपरेटर. ऑपरेटर एक ऑपरेटर है वो, जैसे डेल एक ऑपरेटर है, वैसे डेल लैप्लासियन एक आएगा. तो लैप्लासियन इज अगेन एन ऑपरेटर. वो कैसे डिनोट करते हैं अभी हम लोग देखेंगे. तो लैप्लासियन इज अ सिंगल ऑपरेटर. एक सिंगल ऑपरेटर मतलब एक ही क्वांटिटी पे वो ऑपरेट करेगा. is a single operator which is the composite of gradient and divergence operator. अभी इसमें मुझे लगता है तुम लोग को ग्रेडियंट पता है कि नहीं. which is the composite of gradient and divergence operators. ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस ऑपरेटर मतलब लैप्लासियन एक ऑपरेटर है जो कि इसका कंपोजिट है, ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस, ये दोनों का कंपोजिट है. ओके, सो नाउ वी विल सी ओवर हियर. राइट डाउन द लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर फील्ड V इज रिटर्न एज, ये वाला लिखो, द लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर फील्ड V, लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर फील्ड V रिटर्न एज डेल स्क्वायर V. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि लैप्लासियन ऑफ V, then it will be written as del square V. अगर मैंने बोला लैप्लासियन ऑफ A, then it will be del square A. Laplacian of B, del square B. Okay, so what is this del square? This del square is called as a Laplacian operator. Is it okay? Laplacian क्या है यहाँ पे? Del square is the Laplacian operator. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. अभी हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो Laplacian operator है, it is a composite of divergence and gradient. तो कैसे? So write down is the this is the del square A, sorry, del square V. Laplacian of V is written as del square V is, write down, is the divergence of the gradient of V. Is the divergence of the gradient of V. मतलब ये del square आया कैसे, तो वो अभी यहाँ पे देखो नीचे. ओके, दस इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हम लोग कार्टेशियन की बात कर रहे हैं अभी. कार्टेशियन सबसे सिंपल है, तो हम लोग कभी भी कार्टेशियन से चालू करेंगे. सो इन कार्टेशियन लैप्लासियन V इज इक्वल टू
मतलब लैप्लासियन ऑफ v, v इज अ वेक्टर और उसका मुझे लैप्लासियन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? सो दैट इज नथिंग बट डेल डॉट डेल v. अभी यहाँ पे व्हाट इज द डेल v? अगर मैं सिर्फ डेल v बोल रही हूँ, व्हाट इज दैट मीनिंग? व्हाट इज दैट ऑपरेशन? Gradient. इट इज ग्रेडियंट ऑपरेशन. ओके, प्लीज राइट डाउन दिस. ये जो इतना पार्ट है ना, डेल v, अगर डेल और v डायरेक्टली लिख रहे हो, उसके बीच में ना कोई डॉट है ना कोई क्रॉस है, ओनली डेल v, सो दैट इज द ग्रेडियंट ऑपरेशन. ओके, तो अगर मैंने डेल v बोला मतलब ग्रेडियंट ऑफ v. अभी उसके बाद मैंने आगे एक डाइवर्जेंस का ऑपरेटर लगा दिया, सो दैट मीन्स डेल डॉट ग्रेड v. सो डेल डॉट ग्रेड v, so del dot grad v is nothing but your Laplacian. So del dot grad v, तो हम लोग ये del, it will be represented as del square. Okay, so is it okay this point? So del square v is the Laplacian of v. और ये कैसे आया? What is that? It is nothing but divergence of gradient of vector. Divergence of gradient of vector v. Sorry, scalar, not vector. It is a scalar. यहाँ पे प्लीज नोट इट डाउन, v इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये जो v है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर का तुम लोग को क्या करना है? ग्रेडियंट पहले लेना है और उसके बाद उसका फिर डाइवर्जेंस लेना है. देन जो भी तुम लोगों ने ऑपरेशन किया अभी, उसको हम लोग बोलेंगे कि यू हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड द लैप्लासियन ऑफ अ स्केलर. ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट. ये वाला जल्दी से लिखो बस. एंड वी विल स्टॉप इट हियर एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट लेक्चर. इतना पॉइंट लिखो, लैप्लासियन v. लैप्लासियन v का मतलब है लैप्लासियन ऑफ v मुझे फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? इट इज गिवन बाय डेल डॉट डेल v. अभी डेल डॉट डेल v मतलब क्या, इसको बोलेंगे कैसे? इट इज द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v एंड विच कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर v. So all of you, is it clear what is Laplacian operation? Yes, ma'am. Okay. अभी प्लीज ये मत पूछना कि ग्रेडियंट क्या होता है. ओके, जिनको भी अगर ग्रेडियंट भी नहीं पता है, प्लीज ये वेक्टर कैलकुलस का जो स्टार्टिंग का पार्ट है बुक का, गो थ्रू दिस. यहाँ पे तुम लोग को ग्रेडियंट का ऑपरेशन मिलेगा. ओके, जस्ट मैंने बोला ये पहले 3 चैप्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेक्टर कैलकुलस. सी ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर 65. ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी का हमेशा ग्रेडियंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो ये तुम लोग को 65 पेज पे मिलेगा. सो प्लीज गो थ्रू दिस, ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, ओके, कंप्लीटेड हो गया वो लिख के? Yes, yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So now you can leave. Thank you. We'll meet in the next lecture. Okay, bye.